डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज का जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस? तो इसमें पहला जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें जो पहला टाइप है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, व्हाट आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस किन को कहा जाता है? Combination reactions, those reactions in which two or more in which two or more substances those reactions in which two or more substances combine to form a single substance। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किन रिएक्शंस को कहते हैं? उन रिएक्शंस को कहा जाता है जिनमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिल जाते हैं और एक ही चीज पैदा कर देते हैं, मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट को बना। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मैग्नीशियम combines with oxygen, they form magnesium oxide। These are two single reactants. These are two reactants. On reactant side, magnesium and oxygen, the two substances. On reactant side, when they react with one another, they form a single product, that is magnesium oxide। तो इसी तरह this is the example of this combination। These two combines on reactant side and forms a single single substance on product side। तो इसी तरह इसमें और एग्जांपल्स बहुत सारे। C+O2 gives us CO2। Carbon and oxygen when reacts, these are the two substances in react side, they form a single substance, that is carbon dioxide on product side। Such reactions are called combination reaction। combination reaction का मतलब ही होता है कि दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिल जाना और एक नई चीज को वजूद में लाना। इसी तरह और एक H2 plus O2 gives us H2O। all these reactions are combination reactions। why these reactions are called combination reactions? Because on reactant side, in these three reactions, on reactant side, two substances combines to form a single product, single substance on product side। इसकी डिफिनेशन भी वही कहती है, those reactions in which two or more substances combine to form single product। जब दो या दो से ज्यादा चीज आपस में मिल जाते हैं तो एक सिंगल चीज, सिर्फ एक चीज जब वजूद में उनसे आता है तो उन्हीं को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो इसका जो दूसरा टाइप दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन दूसरा टाइप है इसका, दैट इज डिकम्पोजिशन। व्हाट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस किन रिएक्शंस को कहते हैं? तो डिकम्पोजिशन दोज रिएक्शंस इन विच those reactions in which a chemical substance splits up into two or more simpler substances।
तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन किन रिएक्शंस को कहते हैं? दोज रिएक्शंस इन विच केमिकल सब्सटेंस, अगर एक केमिकल सब्सटेंस को हम लेंगे, एक सब्सटेंस को जब वो स्प्लिट हो जाता है, जब वो टूट जाता है, स्प्लिट का मतलब होता है टूट जाना, ब्रेक होना, जब वो ब्रेक हो जाता है इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, और उसके दो या दो से ज्यादा चीजें बन जाएंगे, तो उसको हम कहेंगे डिकम्पोज. वी कैन से दैट दिस केमिकल सब्सटेंस डिकम्पोजेस इनटू टू और मोर सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल, तो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल, इसकी भी एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स बहुत सारी है, हम लिख सकते हैं. तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं. CaCO3. CaCO3, when it is heated, how it decomposes, how it splits this calcium carbonate when it is heated. This calcium carbonate, when calcium carbonate is heated, it decomposes, it splits, it breaks up into two substances, CaO plus CO2. This is calcium oxide and this is carbon dioxide. Calcium carbonate on heating splits up into two substances, two simpler substances, that is calcium oxide and carbon dioxide. तो इन रिएक्शंस को हम डिकम्पोजिशन को, these reactions are being decomposed into two or more simpler substances. तो इसी तरह और एक एग्जांपल मैं लूंगा इसकी. फॉर एग्जांपल, ferrous sulfate 2FeSO4. This is ferrous sulfate. Ferrous sulfate. When ferrous sulfate is heated, जब इस ferrous sulfate को हीट दी जाती है, it forms furic oxide. Fe2O3. This is furic oxide. Furic oxide plus SO2 plus SO3. ये चीजें इसमें प्रोड्यूस होती है, तीन होती है, उसमें दो, इसमें तीन. दिस इज सल्फर, ये डाइऑक्साइड होता है, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है. Trioxide. This is also a decomposition reaction. Why? Because this ferrous sulfate is when heated. When ferrous sulfate is heated, it decomposes, it splits into furic oxide plus sulfur dioxide plus sulfur trioxide. तो इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें सिर्फ दो चीजें वजूद में आई थी, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इस कैल्शियम कार्बोनेट से. अब इस फ्यूरस सल्फेट से तीन चीजें वजूद में आती है, फ्यूरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. इट इज आल्सो ए decomposition. Such reactions are called decomposition. Such reactions in which a chemical substance splits up into two or more simpler substances are called decomposition reactions. तो इसमें और एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, सिंपल एग्जांपल भी दूंगा इसमें. फॉर एग्जांपल, व्हेन वी टेक वाटर H2O, तो दिस वाटर कैन ऑल्सो बी स्प्लिटेड. इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं इनटू H2 प्लस O2. तो इस वाटर को हम अलग कर सकते हैं हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में बाय इलेक्ट्रोलिसिस. इसको इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है. तो दिस वाटर कैन split us up into hydrogen and oxygen. It's a simple reaction of this decomposition reaction. तो इसको हम बैलेंस करेंगे, दो और दो, तो इस तरह हम ये भी कर सकते हैं. It is also a decomposition reaction. इसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम लेंगे, तो सिल्वर ब्रोमाइड को भी हम
और एक रिएक्शन में अगर आपको दूंगा सिल्वर ब्रोमाइड की, सिल्वर ब्रोमाइड AG, सिल्वर की फार्मूला AgBr, दिस इज सिल्वर ब्रोमाइड, इट ब्रेक्स अप विद द हेल्प ऑफ लाइट। अगर हम इसको रोशनी में रखेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइट, ये लाइट की वजह से ब्रेक हो सकता है ये सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसमें क्या बन जाता है, सिल्वर अलग जाता है और ब्रोमीन अलग चला जाता है। तो इसको हम बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस के लिए Br2, दिस इज 2 एंड हियर 2। Two molecules of silver bromide, when it is kept in light, simply we can kept it in sunlight, it breaks up to form two molecules of silver and one molecule of bromine. It is also a decomposition reaction. तो इसको हम decomposition reaction कह सकते हैं। It is a decomposition. This is silver bromide. This is silver and this is bromine. तो इस तरह these are the examples of decomposition reaction. थैंक यू। ये दो आज मैंने एक्सप्लेन किए हैं, तो बाकी जो रह गए उनको कल मैं एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।